السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ ستارک وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، آج جس عنوان پر درس کا موقع دیا گیا وہ عنوان ذرا عجیب سا ہے۔ عجیب سا اس لیے کہ یہ عنوان ہی نہیں بلکہ ایک سوال ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ عنوان کیا ہے؟ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ اس دن میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ النساء کی پارہ نمبر 5 کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے افراد کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رفاقت کے بارے میں کیا ہی تعریف کیا، کہا ان کی رفاقت کیا ہی بہترین رفاقت ہوگی۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوگا وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بہت ڈھیر سارے مرد و خواتین ایسے ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے، شرط ہے کہ ان کے اندر وہ اوصاف پائے جائیں جو اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ دل سے بات شروع کرتے ہیں، چونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لہذا دل سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نرم دل ہوں گے، چڑیوں کی طرح جن کا دل ہوگا، وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اور چڑیوں کا دل اگر دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے چڑیوں کا دل بالکل نرم ہوتا ہے۔ چڑیوں کے دل کے اندر عاجزی و انکساری پائی جاتی ہے۔ یہ چڑیا منکسر المزاج ہوتی ہے، اور چڑیوں کے اندر دیکھا جائے تو صبح شام یہ چڑیا اللہ رب العزت کے اذکار کرتی ہے۔ اور اگر چڑیوں کے اندر مزید چیزیں دیکھی جائے تو چڑیوں کا بھروسہ کلی طور پر اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تمہارا بھروسہ، تمہارا توکل اللہ رب العزت پر ٹھیک ویسے ہوتا جس طرح سے چڑیوں کا ہوتا ہے، تو پھر چڑیوں کی طرح تم روزی روٹی دیے جاتے۔ یہ چڑیا صبح صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتی اور شام ہو کر کے سکم سیر ہو کر کے گھر لوٹتی۔ تو چڑیوں کے اندر دیکھا جائے تو توکل بھی پائی جاتی۔ تو آپ کے اندر وہ دل ہونا چاہیے جو چڑیوں کے اندر دل ہے، اللہ پر توکل، نرم دلی، عاجزی و انکساری، منکسر المزاج، تب جا کر کے آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو جن کے اندر چڑیوں کی طرح دل ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جنت کے اندر غریب، مسکین، محتاج اور کمزور طبقہ کے لوگ اکثریت میں ہوں گے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور، اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر جنت کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ یہ روایت دیکھا جائے تو مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوئی، جو کمزور طبقہ کے لوگ ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کلاس ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، معاشرے میں ضرورت مند ہیں، تو یہ لوگ جنت کے حقدار زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ اتنی تکلیفیں یہ برداشت کرتے ہیں معاشرے میں کہ دیگر لوگ اس کے برابر تکلیفیں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی اور ایک روایت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تمہارے بیچ ایسے لوگ رہتے ہیں جو معاشرے میں جائے تو کوئی اس کو بیٹھنے تک نہ کہے، نہ ان کی عزت و توقیر کی جائے، بے وقعت، بے حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا مقرر کہ کسی بھی معاملے میں قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اس کی قسم قبول نہیں کرتا۔ کسی کے معاملے میں دعا کر دے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر کمزور طبقہ جو ہے، آپ ان کی عزت اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو ذلیل کرنے کا حق آپ نہیں رکھتے، ان کو ذلیل کرنے کا حق آپ کا حق نہیں ہے۔ عزت کرتے ہیں تو کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن عزت اگر نہیں کرتے ہیں تو ذلیل اس کو مت کیجیے۔ اگر آپ ذلیل کر رہے ہیں تو پھر مظلوم گردانے جائیں گے، اور مظلومیت کے عالم میں اگر وہ زبان سے آہ کو نکال دیا تو آپ کی زندگی تباہ ہو کر کے بڑھ جائے گی، آپ برباد ہو کر کے جائیں گے۔ تو جنت کے حقدار ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جنت میں ہر وہ لوگ داخل ہوں گے جو نرم مزاج ہوتے ہیں۔ دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب ہے، وہ جنت کے اندر داخل کیے جائے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ شریف النفس انسان جنت کے اندر داخل ہو، نرم دلی، نرم مزاجی جس کے اندر ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو اپنے اخلاق کو، اپنی طبیعت کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہونا ہی چاہیے، ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے۔ طبیعت کے اندر نرمی آنی چاہیے۔ ہاں، دین کے معاملات میں سختی ہے اور بات ہے، اپنے لوگوں کے تعلق سے سختی ہے اور بات ہے، مومنوں کے تعلق سے سختی ہے تو پھر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ دیکھیں، یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھائے
तो आपको ये बात मिल जाती है सूरह फतह आखिरी आयत में, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं और उनके साथ जो रहते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, यह कुफ़्फ़ार मुशरिकीन पर बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। और आपस में क्या है, बहुत ज्यादा रहम दिल है। आज हमारी तबीयत क्या है, आपस में हम बहुत सख्त हैं और अगियार के खिलाफ बहुत नरम है। मामला उल्टा हो गया। मामला उल्टा करने की जरूरत नहीं है। औरों के तहत आप सख्त बन जाए, अपनों के तहत आप नरम बन जाए, तो आप देखेंगे आपका एक के बजाय दसियों अफराद दोस्त बन जाएंगे। क्यों? जब आप उनकी खैर खाही करेंगे, उनकी भलाई में आप आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे, बुराई में आप जो है रोकने का जरिया बनेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में ये शख्स आपका साथी बनेगा, आपका दोस्त बनेगा। सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए, उनके अंदर ये मिजाजी थी, नर्म मिजाजी, और दूसरों के खिलाफ सख्ती थी। तो एक सहाबा पर किसी ने अगर उंगली उठाया, पूरे सहाबा इकराम जम करके उसका मुकाबला किया और उसके दांत खट्टे कर दिए। क्यों? कि आपस के अंदर रहमदिली ये ईमान का हिस्सा है और अगियार के खिलाफ सख्त दिली ये भी ईमान का हिस्सा है। तो हर वो शख्स जिसके अंदर आपस में नरमी है, तबीयत के अंदर नरमी है, मुनकसिरुल मिजाज हैं, तो ये लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि हर वो शख्स जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेगा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा या रसूलल्लाह, क़ाला मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत के अंदर दाखिल होगा सिवाय उस शख्स के जो जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर दे। कहा गया अल्लाह के रसूल कौन लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर जाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत और फरमाबरदारी की ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी इताअत और नाफरमानी से इनकार कर दिया वो गोया के जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर दिया। आज अपने गिरगान की तरफ भाग करके देखिए और अपना ईमान का जायजा लीजिए। मुसलमानों के अंदर बहुत ढेर सारे अफराद ऐसे हैं जब उनको कहा जाता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप इसको अपना लो, तो फिर ये कहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को ठुकरा देते हैं कि हमारे इमाम साहब ने ऐसा कहा, हमारे पीर साहब ने ऐसा कहा, हमारे मुर्शिद ने ऐसा कहा, हमारे बड़ों ने ऐसा कहा, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा। गोया के वो इमाम के बात के आगे, पीर के बात के आगे, बुजुर्ग के बात के आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हेच समझता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करना जन्नत में दाखिल होने से इनकार करना है। ये दलील आपके सामने मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी इताअत और फरमाबरदारी न की, गोया कि वो जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर गया। तो हर वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। इसी तरीके से हर वो शख्स जो दिन रात 24 घंटे में 12 नफिल रिकातों का इस्तेमाल करता है वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना अल्लाह की रज़ा के लिए फर्जों के अलावा 12 रिकात नवाफिल अदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। इस हदीस के अंदर ये बात मालूम हुई कि जो फर्ज रिकातें हैं उनके अलावा 12 रिकातें जो सुन्नत मुअक्कदा है, जो
आदमी इनका एहतमाम करता है वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये 12 रिकातें इस वक्त कौन कौन सी रिकातें हैं, आप जरा गौर से सुने। फजर की नमाज से, जो फर्ज नमाज है, उससे पहले 2 रिकात, ज़हर की फर्ज नमाज से पहले 4 रिकात, फर्ज नमाज के बाद 2 रिकात, इसी तरीके से मगरिब के बाद 2 रिकात और इशा की फर्ज नमाज के बाद 2 रिकात। कुल मिलाकर के कितनी रिकातें हुई? 12 रिकातें हुई। तो जो शख्स 12 रिकातों को पढ़ेगा तो वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। और उनके लिए खुशखबरी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में उनके लिए आलीशान महल, आलीशान घर बनाया जाता है। इसी तरीके से हर वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा जो शख्स सिला रहमी करता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की बंदगी कर और उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाजों को कायम कर, ज़कात अदा कर और सिला रहमी कर। जब वो आदमी वापस पलटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन बातों का इसको हुक्म दिया गया है, अगर ये उन पर अमल किया तो जन्नत के अंदर ये दाखिल होगा। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। इस हदीस के अंदर बात का मालूम है कि जो शख्स खालिस तौहीद का इकरार करता है और अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं ठहराता तो वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। आपको मालूम होगा हदीस से विफाका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के मैदान में एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसके पास गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे। कितने? 99 रजिस्टर। एक एक रजिस्टर इतना बड़ा बड़ा होगा कि आदमी की निगाह जहां तक पहुंचेगी वहां तक ये रजिस्टर बड़ा होगा, लंबा होगा। आज आप आसमान तक देखते हैं, आसमान में जाकर के आपकी निगाहें रुक जाती, दीवार पे देख रहे हैं, दीवार पे निगाहें रुक गई, जमीन देख रहे हैं, जमीन पर निगाहें रुक गई। उस वक्त खाली मैदान होगा, चारों तरफ दूर दूर तक कोई चीज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजिर किया जाएगा उनके साथ 99 गुनाहों का रजिस्टर होगा और एक एक रजिस्टर इतना बड़ा बड़ा होगा ताहद्दे निगाह, और उन रजिस्टरों में सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज में क्या लिखा हुआ होगा? सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही लिखा हुआ होगा। अल्लाह ताला उनको बुलाएगा, कहेगा बताओ ये 99 जो गुनाहों का रजिस्टर है ये तुम्हारे है किसने आपके हैं? तो परवरदिगार आलम ये गुनाहों के रजिस्टर मेरे, तुम्हें इस बात का इकरार है परवरदिगार आलम ये रजिस्टर मेरे ही है? कि बताओ मेरे फरिश्तों ने तुम पर जिम्मेदारी की कि तुमने गुनाह नहीं किया और रजिस्टर लिखा दिया, क्या ऐसी बात है? क्या नहीं? परवरदिगार आलम ऐसी बात भी नहीं। यह आदमी मन मन सोचेगा कि अल्लाह अकबर, गुनाहों के इतने बड़े बड़े 99 रजिस्टर, अब मेरा क्या बनेगा? आज तो जहन्नम से बचने का कोई सबील नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला कहेगा आज किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी, जिसने जो कुछ किया है उसका बदला उसको दिया जाएगा। आज किसी के साथ नाइंसाफी ना होगी। यह मन ही मन कहेगा कि अल्लाह अकबर, गुनाहों के दफातीर हमारे सामने हैं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला सवाल कर लेगा, इतने में पूछेगा बताओ तुम्हारे पास कुछ नेकियां भी है, तुम्हें कुछ याद भी है कि तुमने कभी नेक काम भी किया था? यह बंदा मोमिन जवाब देगा, परवरदिगार आलम मेरे पास कोई नेकी नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी नेकी भी किया था। अल्लाह ताला फिर कहेगा आज किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं किया जाएगा, आज किसी के साथ नाइंसाफी ना की जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक कागज का छोटा सा पुर्जा निकालेगा, उस पुर्जे में, उस बिताका में लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहेगा ए बंदा, क्या तूने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था अपनी जिंदगी में? कहेगा परवरदिगार आलम हाँ मैं तो पढ़ा था।
फिर ये मन मन सोचेगा, एक तरफ गुनाहों के इतने बड़े बड़े 99 रजिस्टर और एक तरफ कागज का एक छोटा सा पुर्जा, छोटा सा बिताका जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। इन गुनाहों के रजिस्टर के आगे इस बिताका की क्या हैसियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तराजू लाएगा, तराजू के एक पर्दे में ला इलाहा इल्लल्लाह जो बिताका लिखा हुआ कागज का पुर्जा होगा रखेगा, और दूसरी तरफ गुनाहों का 99 रजिस्टर को रखेगा। फिर ताजा तराजू से वजन करेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पुर्जा भारी हो जाएगा। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। क्यों? कि उसने सिर्फ दिल से इखलास लिल्लाहियत की बुनियाद पर अल्लाह की रज़ा के खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया था। आज आप क्या समझ रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा? ये देख लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह क्या हैसियत रखता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को जबान पर हमेशा आप पढ़ने की आदत बन जाइए। आप मजलिस में बैठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। मजलिस में बैठे हैं, बीच बीच में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इस तरह के अल्फाज और अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह के अल्फाज, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के अल्फाज को मन मन दोहराते रहिए, जिक्र अज़कार करते रहिए, और बयान जो आपके सामने हो रहा है इन चीजों को सुनते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद चीजें आपके सामने बयान की जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसने तौहीद खालिस का इकरार किया, एक अल्लाह की बंदगी की और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया। एक बात हुई। दूसरी बात कि फर्ज नमाजों को बाजमात अदा करने का एहतमाम किया। ज़कात अल्लाह ने फर्ज किया है तो ज़कात को अदा करने का एहतमाम किया, और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का मामला किया तो वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। उन्होंने तौर पर माशरे में ये जबान पर शिकायतें होती है कि शेख जरा बताता चले कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, लेन देन का मामला करते हैं, लेकिन मेरा रिश्तेदार जो है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, फला रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, तो क्या उनके साथ सिला रहमी करना या उसको छोड़ देना? याद रखें, वो अगर आपके साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं तो आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, नेक सलूक करेंगे। क्यों? यही शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। एक सहाबी आकर के कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, तो मैं क्या करूं? उनके साथ सिला रहमी ना करूं, मैं उनको छोड़ दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अगर वैसा ही कर रहा है जैसा तूने कहा है, तो फिर यकीनन तुम अपने रिश्तेदारों के मुंह में गरम राख डाल दे। अब यहां पर कई मफहूम समझ में आता है, उनमें से एक ही मफहूम बोलता हुआ मैं आगे लिखूंगा। आदमी की जबान पर गरम राख अगर डाल दी जाए तो जबान जल जाएगी या जबान सही सलामत नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं। जल जाएगी ना? अब आदमी की जबान जल गई तो वो अपनी बात को सही से बोल सकेगा या नहीं? सही से बोल नहीं पाएगा ना। यही हालत होगी। आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ बोलने में उनकी जबान न खड़ा जाएगी। वो आपकी बदनामी नहीं कर सकता, आपके हिजू बयान नहीं कर सकता, करना भी चाहेगा तो हिचकी चाहत उनके अंदर आएगी, हिचकी चाहत आएगी। लिहाजा सिला रहमी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नज़ूल हुआ, आप घबरा सा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, मुझे खदशा है कि मेरी जान खत्म हो जाएगी, मैं जान राख हो जाऊंगा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने क्या जवाब दिया था? अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ताला हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ का उन्होंने तज़किरा किया, उनमें से एक वस्फ क्या है? आप सिला रहमी करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, और आपको अल्लाह ताला ज़ाय करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप मुतमईन रहें, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा।
तो लिहाजा सिला रहमी करने से दुनिया के अंदर भी आपको फायदा मिलेगा और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपको यह फायदा मिलेगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तो हर वो शख्स जो सिला रहमी करता है जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। इसी तरीके से खुश अखलाक, अच्छे अखलाक जिन अपराध के होते हैं, ये अच्छे अखलाक वाले जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जन्नत में ऐसे महल हैं जिसके अंदर खड़े हो तो बाहर की सारी चीजें नजर आती हैं और बाहर खड़े हो तो अंदर की सारी चीजें नजर आती हैं। एक आराधी ने खड़े होकर के अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी, ये किस आदमी के लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके लिए है जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, बकसरत रोजे रखे और जब लोग नजर की नींद सो रहे हो तो ऐसे टाइम पर उठ करके वो नमाज अदा करें। ये रिवायत तिर्मिज़ी की है। इस हदीस के अंदर क्या है? अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करना और अच्छे अखलाक वाला शख्स ही अगला को रिस्पेक्ट दे करके, इज्जत दे करके बात कर सकता है। जो बद अखलाक है, जो बद मिजाज है, वो अगला की इज्जत क्या है, उनकी तौकीर क्या है, उसको क्या मालूम कि वो दूसरों की हिजू बयान करने में रहता है, अपनी बड़ाई बयान करने में रहता है। तो एक अच्छा अखलाक वाला शख्स की ये शायान शान है कि वो नर्म बात करते हैं, मीठी बात करते हैं, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं। तो जो लोग अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं और यतीमों मिस्किनों को, दूसरों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, कसरत से रोजों का एहतमाम करते हैं, जो फर्ज रोजे हैं उनको तो रखना ही है, उनको तो रखते ही है, फर्ज रोजों के अलावा भी दीगर नवाफिल जो रोजे हैं उनका भी एहतमाम करते हैं और नमाजों को पाबंदी के साथ करते रहते हैं, तो ऐसा हर शख्स जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। इस हदीस के अंदर जो बात मालूम हुई वो ये है कि खुश अखलाक, तहज्जुद गुजार, कसरत से नफली रोजे रखने वाले और दूसरों को खाना खिलाने वाले जितने भी अफराद हैं ये जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। आपको मैं बताता चलूं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इक़्तिदार से नवाजा, हुकूमत से नवाजा है, तो आदिल बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए और आदिल इंसाफ का मामला कीजिए, क्योंकि आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला, जिम्मेदार ये जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। जैसा कि हजरत आयात बिन हमाद मजाशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, जन्नत में जाने वाले 3 किस्म के लोग होंगे। आदिल हाकिम, सच बोलने वाला, नेक काम की जिसको तौफीक दी है। दूसरे वो शख्स जो हर कराबतदार, हर मुसलमान के लिए मेहरबान और नर्म दिल। तीसरे वो शख्स जो पाक दामन है और आयामदार है, इसके बावजूद वो दूसरों से सवाल नहीं करते, भीख मांगने से परहेज करते। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। पहला आदिल हाकिम और झूठ से परहेज करने वाला, नेक काम को अंजाम देने वाला। दूसरा वो शख्स जो मुसलमान और कराबतदारों के साथ सिला रहमी करने वाला है, नर्मदिली से पेश आने वाला है। तीसरा वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे जो पाक दामन है और सवालात से बचते हैं, भीख मांगने से बचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ इनायत किया है उन्हीं में से खाते हैं और उन्हीं में से अपनी जिंदगी को बिताने की कोशिश करते हैं, दूसरों की तरफ नहीं देखते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिला शिकवा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की यहाँ शुक्रगुजारी से काम लेते हैं। इसी तरीके से हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने यूं कहा, मैं अल्लाह के रब होने पर, दीन इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हूं, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये रिवायत अबू दाऊद की है।
इस हदीस से बात मालूम हुई कि जो लोग रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना और मुहम्मदिन रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। अब इस दुआ को पढ़ने के औकात के ताल्लुक से बाद रिवायतों में यह बात मिलती है कि जो शख्स अज़ान के कलिमात को सुनता है और मिन व अन उन कलिमात को दोहराता है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की जगह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, फिर अज़ान खत्म होने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, दुरूद इब्राहिमी के बाद अज़ान के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ को करता है, और उसके बाद रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत भी उनके ऊपर वाजिब हो जाती है। लिहाजा इस दुआ को पढ़ने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। आप भी इस दुआ का इस्तेमाल करें और जन्नत में अपना मकाम को मुतय्यन करें। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के अंदर जाने की तौफीक इनायत फरमाए और जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। इसी तरीके से आजकल माशरे में खास करके ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश, वो आजमाइश क्या है? बेटियों के जरिए से आजमाना। ये काम यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजर सवाब भी बहुत ज्यादा रखा है। आइए नबी की हदीस क्या बताती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो लड़कियों को उनके जवान होने तक पाला पोसा, क़यामत के दिन मैं और वो उस तरह से आएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को आपस में मिलाया। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की। दूसरी रिवायत में इसकी वजाहत ये मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबाबा और उस्ता दोनों उंगली को मिलाया। अब इसमें दोनों को मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख अब्दुल शकूर अल असरी रहमतुल्लाह ने बताया दो मफहूम। पहला मफहूम कि लड़की के वालिद का मकाम जन्नत में मेरे मकाम के बगल में होगा, यानी वो पड़ोसी होंगे, दोनों उंगली बगल बगल में है, आजू बाजू में, तो जन्नत में उसका ठिकाना मेरे बाजू में होगा। दूसरा मफहूम, सबाबा उंगली थोड़ी छोटी, उस्ता उंगली थोड़ी बड़ी है, तो जन्नत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बड़ा होगा और लड़की की सही तरबियत करने वाले उनके वालिदैन का मकाम जन्नत के अंदर थोड़ा छोटा होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत दोनों सूरत में उनको हासिल है। लिहाजा हर वो शख्स जिसको लड़कियों के जरिए से आजमाया गया और उसने लड़कियों को सही तालीम दी, उनकी सही तरबियत की, अच्छा से अच्छा रिश्ता का इंतजाम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करार दिया। इसी तरीके से जन्नत में वो लोग जाएंगे जो वुजू बनाते साथ 2 रकात नमाज कम से कम अदा कर लेते हैं। हदीस देखते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज नमाज फज्र के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ऐ बिलाल, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिस पर तुम्हें बख्शिश की ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि आज रात मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैं इससे ज्यादा उम्मीद अफजा अमल तो कोई और नहीं पाता। वो ये है कि दिन या रात में जब भी मैं वुज़ू करता हूं तो जितनी अल्लाह ताला को मंजूर हो नमाज पढ़ लेता हूं। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की। इस हदीस से यह बात मालूम हुई कि जो लोग वुज़ू बनाते हैं और तहियतुल वुज़ू यानी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से उनको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तो हर वो अफराद जो वुज़ू बनाता है, 2 रकात नमाज अदा कर लेता है, और जब जब वुज़ू बनाता है, जब जब 2 रकात नमाज अदा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर जरूर दाखिल करेगा। इसी तरीके से
नमाजों को पाबंदी के साथ जो लोग अदा करते हैं और खास करके जो खवातीन अदा करती हैं और पाकबाज हैं, शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती हैं, तो ऐसे खवातीन जन्नत के अंदर दाखिल की जाएंगी। हदीस का अल्फाज देख लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाजें अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, क़यामत के रोज उससे कहा जाएगा कि जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये रिवायत सही इब्न हिब्बान की। तब इस हदीस से ये बात मालूम हुई, काम छोटा सा, 5 टाइम नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, अपने शौहर की बात को मान लेना। अब इतना काम जो खातून करती है, तो ऐसे खवातीन सब के सब क्या है, जन्नती है, वो जन्नत के अंदर दाखिल की जाएगी। इसी तरीके से अंबिया, शहादा और अहले ईमान ये जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। साथ ही वो तमाम लड़कियां जन्नत के अंदर दाखिल की जाएंगी जिसको जमीन पर जिंदा दरगौर किया गया है, जिंदा जमीन पर दफनाया गया है। हदीस का अल्फाज पहले देख लेते हैं। हजरत हसना बिनते मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हमसे मेरे चचा ने यह हदीस बयान की कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जन्नत में कौन कौन जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी जन्नत में जाएगा, शहीद जन्नत में जाएगा, नौमौलूद जन्नत में जाएगा और जिंदा दरगोर की गई लड़कियां जन्नत में जाएंगी। ये रिवायत अबू दाऊद की। इस हदीस से यह बात मालूम हुई कि अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शहादा ये लोग तो जन्नत के अंदर जाएंगे, साथ ही वो अफराद भी जन्नत के अंदर जाएंगे जो पैदा होकर के मर गए हैं, अभी जवान नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, गैर मुस्लिम के बच्चे हैं, सब बच्चे जन्नत के अंदर जाएंगे। अलबत्ता बच्चों के अंदर कुछ फर्क होगा, बात आ जा रही है इंशाअल्लाह। तो लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे और वो तमाम बच्चियां जो जिंदा दरगौर की गई है, जिंदा जमीन पर दफन किया गया है, वो तमाम बच्चियां जन्नत के अंदर दाखिल होंगी। देखिए, ज़माना जाहिलियत में जहां पर बुराइयां बहुत ज्यादा पाई जाती थी, वहां पर एक बुराई बड़ी आम थी। वो बुराई कौन सी थी कि जिसके घर में लड़कियां पैदा होती थी, लड़की का बाप लड़की को जमीन खोद करके जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा मार देते थे। एक वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का मैं आपको सुनाता चलूं। एक सहाबी आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या इस्लाम कबूल करने से अल्लाह ताला मेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सही बात है, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम कबूल करने से इस्लाम की बदौलत अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। तुमने कौन सा गुनाह किया है, ये सवाल कर रहा है। साहबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जरा बताओ किस तरह से तुमने क्या किया। अब ये सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं घर से बाहर जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, कई महीने बीत गए थे, तो मैंने अपनी बीवी से वसीयत की कि अगर लड़की पैदा हो तो गर्दन दबा करके उसको मार देना, अगर लड़का पैदा हो तो उनकी परवरिश को बर्दाश्त करना। मैं जाकर के चंद महीनों के बाद लड़की की विलादत हुई तो मेरी अहलिया ने परख करके देखा कि बच्ची कैसी है। जब उसने देखा तो बच्ची बड़ी खूबसूरत प्यारी सी लाडली सी है, तो उनके दिल के अंदर रहम आ दिया और वो जो है बच्ची को नहीं मारी, छोड़। अब ये बच्ची बड़ी हो गई, 3-4 साल के बाद मैं घर लौटा तो मेरी अहलिया मेरी बेटी को समझा दी कि देखो, तुम्हारे अब्बा से बात करने तक
तुम सामने मत आना, नहीं तो तुम्हारा बाप बगेला हो जाए, ये गुस्से में आ जाए। मैं खाना खाने बैठा, मेरी छोटी सी गुड़िया लाडली बेटी मेरे आगे से गुजर रही थी और बार बार देख रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। अब मुझे रश्क आया, मैंने कहा ये बच्ची किसकी है? मेरी अहलिया ने कहा ये बच्ची आप ही की है। और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लाडली, कितनी खूबसूरत बच्ची है। इनकी खूबसूरती को देख करके मैंने इसको नहीं मारा। अब जो है खाना खाने के बाद मैंने अपनी अहलिया से कहा कि बच्ची को जरा तैयार कर दो, मैं उनके यहां से जा करके आता हूं, उनके नानी के यहाँ बच्ची को लेकर के मैं जाऊंगा। मेरी अहलिया बच्ची को नहला धुला करके अच्छा कपड़ा पहना करके मेरे साथ रवाना कर दी। मैं जाकर के वो हिस्सा जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, मैं गड्ढा खोदना शुरू किया। मेरे बदन में मिट्टी लगती थी, कपड़े में मिट्टी लग जाता था, तो मिट्टी को ये अपने हाथ से साफ करती थी। और जब मैं अपने मन के मुताबिक गड्ढा खोद चुका, लड़की को उसमें गिरा दिया, तो लड़की रोने लगी, कहने लगी अब्बा हुजूर मुझे आप छोड़ दे, मेरी परवरिश और पर्दाश्तगी आप ना करें, मुझे जिंदा रहने दे, मैं भीख मांग करके कहीं से भी खा करके मैं जिंदा रह लूंगी, आप मुझ पर जुल्म ना करें, मुझ पर जिंदा मिट्टी ना डालें। ये कहती रही, रोती रही, लेकिन मेरे बच्चों की बच्ची की बात को नहीं सुना और ऊपर से मिट्टी डालते डालते उस बच्ची को हमने वहीं पर दफन कर दिया, जिंदा मार दिया। लेकिन जब जब उस बच्ची का मंजर निगाहों के सामने आता है, बच्ची का रोना, बच्ची का गिड़गिड़ाना, बच्ची की आजिज़ी व इंतज़ारी, बच्ची का बार बार करके दरखास्त करना, ये सारा मंजर जब निगाहों के सामने आता है तो मुझे अफसोस होता है, अरे काश मैं उससे पहले मर गया होता, या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस बुरा काम से रोक लिया होता, मैं अपने आप पर अफसोस कर लेता हूँ। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें अश्कबार थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से आंसू टपक रहे थे। ये सहाबी रसूल अपना वाकया बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज है, रहीम है, करीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की शक्ल ने की कि हर एक के लिए नबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो बच्ची गर्चे उनके वालिदैन जहालत पर गुजर गए हैं, लेकिन वो जिंदा दरगौर की गई है तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगी। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बताओ किस गुनाह के पादाश में ऐ बच्चियों तुम्हें जिंदा दफन किया गया था, जिंदा दरबार किया गया था। जब इन बच्चियों से पूछा जाएगा, बच्चियों का जवाब आएगा, आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? तो उस वक्त ये बच्चियां जहन्नम से बचा ली जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जन्नत के अंदर दाखिल की जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर उसी बात का तज़किरा किया और कहा कि जिंदा दरगौर की गई लड़कियां भी जन्नत के अंदर दाखिल की जाएंगी। वो जमाना जाहिलियत था कि लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। आज माशरे में लोगों की हालत क्या है कि पेट में जमीन क्या है, मर्द है या औरत है, बच्चा है या बच्ची है, बच्चा है तो छोड़ा जाता है, बच्ची है तो गोली डाल करके पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। याद रखो, जमीन का वो हिस्सा आज भी मक्का की सरजमीन पर मौजूद है। हुकूमत वहां पर बिल्डिंग आज भी नहीं बना सकी। वो पूरा इलाका 1 किलोमीटर का इलाका जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, वहां पर जब जब बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग जमीन हो जाती है, लिहाजा वो पूरा इलाका दीवार डाल करके घेर दिया गया और वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाता है। ये निशाने नहीं रहते हैं, ये जुल्म ज्यादती की हद है। जब्त तवालिद हराम है, जब्त तवालिद हराम है, लेकिन आज माशरे के अंदर जब्त तवालिद का मामला बहुत ज्यादा है। मैं जहां तक समझता हूं कोई भी घराना ऐसा नहीं है
जहां पर ज़ब्त तवालुद नहीं किया जाता हो। अब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है, फौरन लोग हॉस्पिटल को भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जो है ये मामला तय करता है, कह देता है कि ऑपरेशन करके ही बच्चे की विलादत हो सकती है। अब ऑपरेशन करो, एक ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हुआ, 3 ऑपरेशन हुआ, उसके बाद डॉक्टर का हुक्म जारी होता है 3 के बाद चौथा ऑपरेशन आप कर नहीं सकते, लिहाजा ज़ब्त तवालुद कर लो। ज़ब्त तवालुद कर लो, बच्चे को बंद कर लो, ये सोचा जाता है, कहा जाता है, और एक माहियत के प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें अंजाम दी जाती है। आज माशरे में यह हालत है। कौन सा ऐसा घर है जहां पर ज़ब्त तवालुद नहीं किया जाता हो? एक माहियत से सारी चीजें अंजाम पा रही है, लेकिन आज से 1400 साल पहले अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन ये जुमला कह गए हैं कि कुर्ब क़यामत के टाइम एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपनी औरतों का पेट काट करके थोड़ा सा गोश्त निकाल करके फेंक देंगे, और ये इस बात की दलील होगी कि उसके बाद से बच्चों की विलादत नहीं हो। आज वही हो रहा है ना, पेट से गोश्त का टुकड़ा जो काट करके निकाल लिया जाता है, कौन सा टुकड़ा है? वो बच्चा दानी है ना, जहां पर बच्चे की परवरिश और परदात होती है, वही तो हिस्सा है जो डॉक्टर काट करके निकाल देता है और बाहर फेंक देता है। अब बच्चे की विलादत नहीं होने वाली, काम खत्म। ये जो ज़ब्त तवालुद किया जाता है, आदमी ये सोच करके करता है कि मैं क्या खाऊंगा, अगर बच्ची की विलादत हो गई तो बच्ची की परवरिश और परदात कैसे होगी? बच्चे की विलादत ही तो उसकी तालीम और ताल्लुम का कहां से अखराजात पूरा होगा? ये सारी चीजें सोच करके ये चीजें अंजाम दी जाती है, जो कि ये गलत तरीका है। अगर बच्ची की पैदाइश हुई तो आपके लिए खुशखबरी है कि ऐसी बच्चियां जिनकी परवरिश आप करेंगे और उसके बदले में आप जन्नत के मुस्तहिक होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करने वाले जो हैं वो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। तकरीबन 40 मिनट का वक्त मिला था और करीब 45 मिनट हो रहा है। इस तरह से बहुत ढेर सारी अहादीस अभी हमारे सामने हैं, जिनमें आपको इन बातों का तज़किरा मिलता था कि कैसे कैसे अफराद हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। और वैसे भी आज 23वीं ताकरात है। ताकरातों में इंफरादी तौर पर आप कसरत से ज़िक्र का दुआ मनाजात वगैरह करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारी नजात का जरिया बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।